Hello friends, welcome you all to the YouTube channel of Avian IAS Academy. I am Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce, and with this video we are going to proceed with our content motivation theories. So in the previous video, as you must have gone through it, हमने क्या cover किया था? We covered the two categories of motivation theory, जिसमें कि हम content and process के बेसिस में हम मोटिवेशन थ्योरीज को डिवाइड करते हैं. सो हमने सबसे पहले पिक किया था स्टडी करने के लिए द कंटेंट थ्योरीज, जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड एंड ऑल्सो एल्डरफर्स ERG थ्योरी. सो आइए देखते हैं कि व्हाट इज देयर वी हैव टुडे फॉर द कंटेंट थ्योरीज. सो as I discussed Maslow's hierarchy need theory and Eldorfer's ERG theory we have done. ऑल्सो टू टेल यू, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, दैट एल्डरफर इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड. राइट, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अदर टू कैटेगरीज ऑफ द कंटेंट थ्योरीज विच आर मैकलेन्स थ्योरी ऑफ नीड एंड हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि हम कंटेंट थ्योरीज को कंटेंट थ्योरीज क्यों कहते हैं. व्हाई? बिकॉज जो प्रोपाउंडर्स हैं, इट बी मैस्लो, एल्डरफर, फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग और मे बी मैकलेन, so they try to understand the psychology of the employees to understand motivation factors in terms of the content, right, on the basis of the needs, psychological needs they have, maybe in terms of achievement, maybe in terms of responsibility, maybe in terms of recognition, maybe in terms of acquiring power. So ये जितने भी authors हैं, why they have given this content model in the motivation theories, because they wanted to study the psychology on the basis of the needs of an employees, right? So without wasting time, हम आज के टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, which are the Macklin's theory of need and Frederick Herzberg's two-factor theory. So before proceeding on to understanding these theories, सबसे पहले please cram, you remember, you learn, or whatever you do, you just recall the names of each of the propounders, क्योंकि UGC NET, NTA UGC NET, Management and Commerce in both the papers, प्रोपाउंडर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. आई रिपीट, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. दे कैन आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वो थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे एंड दे विल आस्क यू दैट हु हैज़ गिवन दिस थ्योरी एंड हु हैज़ मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस थ्योरी, और दे विल गिव अ क्वेश्चन एंड फॉर्म अ क्वेश्चन इन मैच द फॉलोइंग कैटेगरी. राइट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स प्रोसीड. Third category, including Maslow's hierarchy of need and Eldorfer's ERG theory. So we have the third category of Frederick Herzberg's theory, right? This is a two-factor theory. So I tell you that why this is a two-factor theory. बिकॉज यहाँ पे हम दो फैक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं कि मोटिवेशन किससे ज़्यादा मिलता है एम्प्लॉयज़ को. यू नो, वन फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फॉर्मिंग द सेटिस्फैक्शन एंड अनदर फैक्टर is providing and avoiding to have a dissatisfaction. So what are those two factors? So इस थ्योरी में हम दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, is motivating factors I would say, and another I have the hygiene factors, right? So motivating factors कौन से हैं? That directly leads to the satisfaction. And hygiene factors कौन से हैं? That avoids getting in the state of dissatisfaction, or that basically avoids dissatisfaction. So this person Frederick Herzberg, so he has given a theory. इन्होंने कहा है कि employees की life में दो factors होते हैं. So how they evaluate anything in the organization on the basis of two factors, motivating factors and hygiene factors. उसमें क्या होता है, उन्होंने they have listed out कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं टू परफॉर्म गुड, टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली, राइट. एंड कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं जिनका होना, राइट, अवॉइड्स द डिससैटिस्फैक्शन फॉर एन एम्प्लॉय, राइट. Now I know you guys will get confused and you will say, ma'am, like the opposite of satisfaction is of course dissatisfaction. So can we say कि अगर हमारे पास
मोटिवेशन फैक्टर्स जो हैं, इफ वी आर सेटिस्फाइड कैन वी से कि हाइजीन फैक्टर भी सेटिस्फाइड है, राइट और अगर हमारे हाइजीन फैक्टर्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, सो कैन आई से कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री? No, these are two other things that Hesburghs has explained. So I cannot say if I am not satisfied, I repeat, if I am not satisfied with my motivating factors, I cannot say that I am dissatisfied. I will use the term instead that the employee is not satisfied, right? And vice versa. If the hygiene factor, under hygiene factor, if the person is not dissatisfied, right? I repeat the term, if the employee is not dissatisfied, that doesn't mean that the person is satisfied. No, we will call it as the employee is not dissatisfied. That means with the working conditions, with the kind of supervisions, with the kind of interpersonal relationships, with the kind of salary, wages he is getting, he is, he's not dissatisfied. He is going good, right? So let us understand in detail what are these factors in total, right? So under the motivation factors, the points that comes are, so ये वो factors हैं जिनसे कि employees को motivated feel होता है. So can I say the work itself, then achievement, then giving an employee an extra responsibility. Can I say recognizing somebody's work is also motivating? Yes. Can I say personal growth? Yes. Right? And so on. So these are some of the factors जो कि motivation में आते हैं. So अभी मैं आपको पहले वो factors बताती हूँ वो कौन कौन से हैं, then we will understand it with an example, right? अब हम डिससेटिस्फैक्शन के स्टेट में कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स हैं जिससे कि हम आ सकते हैं. ऑल्सो डू नॉट जस्ट हैव अ नोशन कि हाइजीन फैक्टर से केवल हम सफाई की, ऑर्गेनाइजेशन की बातें कर रहे हैं. नहीं, हाइजीन फैक्टर इज जस्ट वन कैटेगरी जिसमें कि हमने डिससेटिस्फैक्शन जिनसे कॉज हो सकता है उन फैक्टर्स को यहाँ पर डाला है, राइट? जैसे कि हमारी वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज हो सकती हैं, राइट? ऑल्सो द काइंड ऑफ सुपरविजन होल्ड किया होता है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में. सो सुपरविजन, द काइंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट? ऑल्सो द काइंड ऑफ सैलरीज एंड वेजेस दे आर गेटिंग, salaries and wages they are getting, right? So on. So ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं. मोटिवेटिंग फैक्टर्स में कौन से आते हैं? वो सारे डायरेक्टली फैक्टर्स आते हैं जो मेरे काम से, मेरे रिकॉग्निशन से, अचीवमेंट से और मेरे करियर एंड पर्सनल ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, राइट? ओके, सो अभी समझते हैं दैट हाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज कम इनटू एंड यहाँ पर हेड्सबर्ग्स का क्या मतलब है. सो ही इज सेइंग कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो पूरे के पूरे वर्क कल्चर को आई वुड से एंड हर एक चीज़ जो वो एनालाइज करता है या जिससे एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है वो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता है. वन इज मोटिवेशन एंड अनदर वन इज हाइजीन. ठीक है, मोटिवेशन में ही इज सेइंग दैट मोटिवेशन डायरेक्टली लीड्स टू सैटिस्फैक्शन. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरा जो काम है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे काम में मुझे मज़ा आता है, आई फील पैशनेट, आई फील एंथुजियास्टिक और मुझे उस वजह से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो मुझे रिकॉग्निशन मिलता है, मुझे अचीव्ड फील होता है. देन आई ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई गेट प्रमोटेड, मेरी करियर ग्रोथ अच्छी जाती है, मेरी पर्सनल ग्रोथ अच्छी जा रही है, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाता है, मुझे रिवॉर्ड दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहा जाता है, वॉट एवर. सो दिस विल बिकम द पॉइंट फॉर मी टू गेट सेटिस्फाइड, रियली सेटिस्फाइड. ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा further also to give high performance, right? To give high performance, right?
ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल मुझे सब कुछ दिया जा रहा है, मेरे को अचीवमेंट मिल रही है, मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मुझे रिवॉर्डेड दे आर मेकिंग मी फील, मेरे काम को वैल्यू किया जा रहा है, सेल्फ एस्टीम इज दे आर वैल्यूइंग मी, everything in terms of work profile also, the kind of profile I need, I want, मुझे वो भी मिल रही है, बट वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वेज में वर्क होता है, बहुत अनसिस्टमैटिक चीज़ें चलती हैं, बहुत अनहाइजीनिक प्लेस है, मे बी लाइटिंग, इफ़ आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लाइटिंग इतना अच्छा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे सुपरवाइजर्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, या मेरे टीम में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, that will not make me not satisfied. मेरे को काम तो मेरा पसंद है ही, but there are other factors जो कि साइड बाय साइड होते हैं मेरे जॉब के, वो मेरे लिए एक लेवल पे डिससेटिस्फैक्शन जरूर क्रिएट कर देंगे, एंड दैट आर लेबल्ड एज हाइजीन फैक्टर्स अंडर हर्ट्जबर्ग्स 2-factor theory. Right? I hope this is very clear. Great. So now we will move upon quickly on our another theory, that is the Macklein's theory of need. So as I told you that हम content theories में हम क्या करते हैं, we try to read the psychology of the employee in terms of the internal needs they have, right? So जैसे कि हमने बात करी, so what all needs we had 5 needs in Maslow's need hierarchy, we had 3 needs category under the Elderfors ERG theory. Under Herzberg's 2-factor theory, we have divided all the things of employees in 2 categories. Okay, so 4th category हमारी यहाँ पर आती है under content model is the Macklein's theory of need. यहाँ पे हमने एम्प्लॉय की नीड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन, राइट? सो वील राइट इट डाउन हियर. सो वी हैव द नीड फॉर अचीवमेंट, we have second the need for power, and third we have the need for affiliation, right? So these are the 3 needs that has been mentioned by Maclean need theory, right? So इसमें content model में Maclean theory of need में हमने एम्प्लॉय को सिर्फ 3 ड्राइव्स या 3 नीड्स के बेसिस पे डिवाइड किया है. मैकलेन ने क्या कहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको या तो क्या होता है, वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, या फिर क्या होता है, उनको पावर एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छा लगता है, दे लव आर्ग्यूइंग एंड विन द आर्ग्यूमेंट, सो दे लव एंड दे इंजॉय पावर एंड अथॉरिटी इन हैंड. एंड थर्ड कैटेगरी होती है नीड फॉर एफिलिएशन, राइट? कुछ लोग होते हैं जिनको लोगों के साथ रहना पसंद होता है, दे आर गुड टीम प्लेयर्स, राइट? दे गो वेरी गुड अलॉन्ग विद टीम, दे उनकी जो टीम वर्क जो होता है, टीम के साथ रह करके उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, दे लव बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, दे आर द वंस जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, राइट? सो वो आ जाते हैं हमारे एफिलिएशन में. सो वी विल हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट इट. सो पहले लेट अस अंडरस्टैंड इनको हम कैसे डिनोट करते हैं. इसको डिनोट किया जाता है बाय एन एक्, इसको डिनोट किया जाता है बाय एन पो, एंड इसको डिनोट किया जाता है बाय ए एन एफ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द नीड फॉर अचीवमेंट इज व्हाट. सो नीड फॉर अचीवमेंट, जैसे कि हम बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स का. एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस जो बहुत विजनरी होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, राइट? दे हैव एन आइडिया एंड दे कीप द करेज ऑफ कन्वर्टिंग दैट आइडिया इनटू रियलिटी, राइट? सो अचीवमेंट वाले एम्प्लॉयज जो होते हैं, दे हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंट ड्राइव कि उनको अचीवमेंट बहुत अच्छा लगता है, चीज़ों को अचीव करना. दे लव मेकिंग थिंग्स सक्सेसफुल, उनको रिकॉग्निशन भी बहुत वो इंजॉय करते हैं, एंड आफ्टर अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन दे इवन इंजॉय गेटिंग रिवॉर्डेड, राइट? उनके अंदर एक ऐसी चाह होती है चीज़ों को पाने की, कुछ करने गुजरने की, राइट? सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज जो कि नीड अचीवमेंट में आते हैं, इनके अंदर का जो ड्राइव होता है दैट मेक देम जैसे मान लीजिए अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं, जिनके लिए अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है उनके लिए पावर एंड अफिलिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वाई? बिकॉज दे जस्ट बिलीव डूइंग दैट थिंग, मेकिंग इट अ रियलिटी एंड गेटिंग रिवॉर्डेड, राइट? आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एंटरप्रेन्योर्स का. एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ना ही इन्हें इतना पावर का शौक होता है, ना ही उन्हें इतना एफिलिएशंस होता है. व्हाट दे डू, दे जस्ट ट्राई टू गेट एन आइडिया, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके दे वांट टू फील, हैव द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट कि नहीं आई डिड समथिंग, एंड वो एक अचीवमेंट रहा बहुत बड़ा,
राइट. ये होती है हमारी फर्स्ट कैटेगरी अंडर मैकलिन्स थ्योरी ऑफ नीड, नीड फॉर अचीवमेंट. सेकेंड कम्स द नीड फॉर पावर. नीड फॉर पावर में क्या आता है, वी हैव सीन लाइक इफ वी हैव वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन अदर वे राउंड, हमने देखे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पावर एंजॉय करते हैं, वो उनके हाथ में यू नो दे रियली फील दैट दे कैरी द पावर टू कंट्रोल थिंग्स. उनको लोगों को इन्फ्लुएंस करना अच्छा लगता है. दे लव आर्ग्यूइंग पीपल एंड ऑल्सो विनिंग ओवर इट. यू नो दे आर द बिग इन्फ्लुएंसर्स जो कि अपनी बातों से दे ट्राई टू कैरी अदर्स एंड इट इज दे एंजॉय. राइट, ये वाले जो लोग होते हैं दे रियली एंजॉय द अथॉरिटी एंड कंट्रोल दे कैन हैव ओवर अदर्स. राइट, सो जो इस तरीके के लोग होते हैं दे रियली एंजॉय कि उनके हाथ में पावर रहे सो दैट दे कैन कंट्रोल पीपल अकॉर्डिंग टू देम. Right, this may or may not be positive. It been handled, if it is handled in a positive way, it can take the lead, it can take the team towards higher heights, towards more productivity. But if it is taken in a negative way, it may even convert into the autocratic leadership style. Right, all right. So now we will move on to the third and the last category under the Macklin's theory of need is need for affiliation. So we have seen that कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो need for achievement इतना ज़्यादा हाई होता है उनका, राइट, उनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन अचीवमेंट इतना ज़्यादा उनको नहीं चाहिए होता है, ना ही दे आर द वंस जिनको लोगों को ऊपर इन्फ्लुएंस करना, लोगों को कैरीड अवे करना, लोगों को कंट्रोल करना इतना पसंद होता है. बट दे आर द वंस हु वांट टू हैव द स्ट्रॉन्ग build strong relations. They are the ones those who go good in interpersonal relationships, right? They are the ones who go very good as team player, राइट. ये लोग सबके साथ जब काम करते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है. दे लव सोशलाइजिंग, दे लव इंजॉइंग रिलेशनशिप्स विद पीपल, दे लव सिटिंग विद पीपल, ईटिंग विद पीपल, वर्किंग विद पीपल, दे लव सोशलाइजिंग, राइट. So these were the three categories of needs under the Macklin's theory of need: need for achievement, need for power, and need for affiliation. So this was all for the content model. We had 4 categories under the content model of motivation theory. First we had the Maslow's hierarchy of need, then we had the Elderfors ERG theory, then we had the Herzberg's 2-factor theory, and last we had the Macklin's theory of need. So now we will understand the kind of questions that has been asked repetitively by the NDA from this particular topic. So the first very type of question that comes is match the following. So match the following में one side in list 1 they will give you the kind of theories or name of it, and at the other side list 2 they will name the authors and propounders. You have to give a correct match to it and mark it. The second category of question that comes from the content model is वो आपसे ये पूछ सकते हैं that they will give a brief of the Herzberg's theory in the question, and they will ask you, they will give you few of the factors, and they will ask you which of the following is the hygiene factor or which of the following is not the hygiene factor, and vice versa, that which of the following is the motivation factor and which of the following is not the motivation factor under Herzberg's 2-factor theory. All right. So third category of question that I have already told you is a straightforward question. They will ask you that which of the following is the theory that which is a extension of the Maslow's need theory, Maslow's hierarchy of need theory, right, which is Elderfors ERG theory. Fourth category of question, they will straightforward ask you what are the full form of ERG under the Elderfors ERG theory, which is existence, relatedness and growth. Right, so this was all from the motivation theory content model, and we will be coming with the next video with process model very soon. Till then, stay tuned, keep learning. Thank you so much.